गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. This can be your message for tomorrow, Guru Purnima. The busyness of life. What is this busyness? Busyness outside is directly proportional to the busyness inside. Understand this much. And if, meaning what? Ki busyness inside? Inside desires, inside expectations, inside hopes, inside guilts, inside regrets. And these are the thoughts continuously going on. The more they are busy, the more you are busy outside. Trying to achieve your desires, trying to fulfill your hopes, trying to run away from the regrets or trying to correct your regrets. And continuously, you're just running from pillar to post, not knowing where you are going. Not knowing where you are going. See, I can only give you through examples that you have to understand. Ocean is also busy. From the beginning till the end, there are only waves, isn't it? Busyness. But if you ask the ocean, hey, you're looking very busy. नहीं यार, busyness is surface पे, अंदर तो मैं शांत हूँ, मैं प्रशांत हूँ. बोलता है ना, I'm quiet. Because his attention is inside. He's not outside, is only 3-4 feet, that's all. 3-4 meters maybe. That's where the waves are. So you want to sort the busyness of life. I'm not saying that you have to stop being busy. Busy रहो, dynamic रहो, बिल्कुल रहना चाहिए. कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. लेकिन but that busyness must not become a problem for us. That busyness must not become a hindrance to us. That busyness must not exhaust us. This is what happens to us, isn't it, on a daily basis? Mm-hmm. Ocean doesn't get tired of creating waves, but it is much deeper than the waves. So when you recognize that you are much more than the activity of the thoughts, you are much more than the activity of the speech, you are much more than the activity in the world at the body level, then you can be dynamic outside and you will be quiet inside. कल भी यही point था कि अंदर शांत रहो, stay empty inside and dynamic outside. And this is the trick, this is the knack, I shouldn't say trick, it's the knack of how, and we have to cultivate it. You have to be alert about it. Okay. Now let's look at the negative side of this busyness. This is the foundation. This is how we must function. Majority of the people who are busy in their life, either they are workaholics, or second type of people who are very busy in their life is who are running away from themselves. हम अपने ही मन से भागते जा रहे हैं, और क्योंकि we don't want to deal with our own with ourselves, so we want to engage here, engage there, do this, do that, कुछ ना कुछ लगे रहना है. And many people I have come across that if they sit quietly for some time, they cannot handle their mind. They cannot handle their mind. So they have to be doing something because they have never trained their mind. Again, I'm saying busyness is not a bad thing. But you have to, each one of us has to discover, is it because I'm running away from something? Is it because I'm running towards something? Is it because I'm afraid of my own mind? The silence of our own mind, or the cacophony that is going on inside.
चिकन फार्म बना हुआ है वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए रुक गए तो कट 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 बिल्कुल. हाँ. And we are not able to handle that chicken farm inside the 2 year, between the 2 years. And to avoid that, we become busy. तो इस तरीके से अपने आप को ढालो कि इन चीज़ों में फंसना नहीं है. पहचानो कि गुरु हमारे अंदर हैं, गुरु हमारा अस्तित्व है, गुरु इज our foundation. The Guru principle, the Sadguru is the Atma. That is the depth of the ocean. And keeping that in mind, you function in the world. Now, if I give you one example, our Swamiji, Bade Swamiji, he went for 2.5 months to America. How many cities he visited and gave lectures? 19 cities. What is his age? 80. Comes back to Bombay, 7 days, 6 days, 6 morning lectures, 6 evening lectures, goes to South Africa, 9 cities he is covering in 3 weeks. But no tiredness. Kyun? And we do 1 day of organizing or something extraordinary and we get tired. If you are empty inside, you will enjoy every moment of your existence. And if you are enjoying every moment of your existence, there is no tiredness. हमारी टायर्डनेस पता है कहाँ से आती है कि मेरे को अभी लेक्चर देना है, बट यार आई विश आई वॉज एबल टू स्लीप राइट नाउ. मेरे को भी खाना खाना है, नहीं आई विश मेरे को खाने के लिए ना पूछे. मेरे को भी काम पे जाना है, आई विश यार आज छुट्टी ले लेते हैं एक. हम हर समय कुछ और की इच्छा कर रहे होते हैं और वो हमारे को टायर्ड कर देता है, क्योंकि जो आ रहा है जीवन में उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उसके साथ हम एक है ही नहीं. हमेशा जैसे बच्चे बोलते हैं, उनको तुम रोटी दो तो उनको पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा दो तो इडली चाहिए, इडली दो तो डोसा चाहिए, डोसा दो तो उसको टाकोस चाहिए, बट नेवर हैप्पी विद व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस. सेम थिंग इज विद अस. We are never happy with what life has given us on a platter. We are always wanting something else other than what is being presented. And that makes us miserable. That makes us... फिर उसकी खोज में, उसके पीछे हम भागते रहते हैं जो हमको मिला नहीं है. जब जो मिला है उसके साथ तो खुश रहो पहले. You be happy with that. Be content with that. और कंटेंटमेंट कैसे आता है अपने जीवन में? कंटेंटमेंट आता है वेरी वेरी, जैसे बोलते हैं शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान. समाधान आप समझ गए? समाधान मतलब कंटेंटमेंट. सो दैट इज द अल्टीमेट कंटेंटमेंट. तो कैसे आता है कंटेंटमेंट? कंटेंटमेंट आता है शम. शम मीन्स कंट्रोल योर सेंसेस. तो डोंट लेट द सेंसेस कीप सीकिंग कि ये अच्छा है और ये म्यूज़िक. जनरली हम जब देखते हैं ना, अच्छा तूने ये कितना अच्छा स्टूल है यार, कहाँ से खरीदा, कितने का मिला, और अवेलेबल है क्या? आई थिंक मेरे कमरे में, मेरे घर में भी अच्छा लगेगा. फिर दूसरे के घर में गए, आज जैसे इनके घर में गए थे तो वहाँ पे वो ब्यूटीफुल, यू पुट सम प्लांट्स जस्ट व्हेन यू कम डाउन द स्टेयर्स. इतना ब्यूटीफुल कलर्स. ओह ये कहाँ पे मिला? तो नॉर्मल आदमी क्या कहेगा, कहाँ से खरीदा, किस दुकान से मिला? मैं भी कोशिश करता हूँ. एंड दिस इज हाउ वी कीप कलेक्टिंग थिंग्स, इजंट इट? जस्ट एंजॉय एंड फॉरगेट इट. नो, वी वांट टू पोजेस इट. दिस इज हाउ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग गोज अराउंड. देखो तो अपने जीवन में ये जो है, जो वॉट एवर इज बीइंग गिवन टू यू एवरी मोमेंट. अभी पहले मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि मेरा पेट भरा हुआ था. 3 घंटे पहले तो खाना खाया था. इसने कहा स्वामी जी ये प्लान है, ये खा लेते हैं, उसके बाद सत्संग करते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट चलते हैं. मैंने कहा अब कोई चॉइस ही नहीं है. चॉइसलेस एग्जिस्टेंस.
अब चॉइस नहीं है तो एंजॉय करो ना, थोड़ा खाओ पर एंजॉय करके खाओ। रो रो के खाओगे तो वो लगेगा ही नहीं तुम्हारे शरीर को, आनंद में खाओ। तो जो कुछ भी अपने जीवन में मिल रहा है उसको आनंद से उसके साथ इंटरेक्ट करो। लोग हैं, परिस्थिति है, एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वेदर आ रहा है, एंजॉय एवरीथिंग। फिर ये जो बिजीनेस है, ये बिजीनेस एक लोड लेके हम नहीं चलेंगे। फिर ये बिजीनेस एक आनंद का बिजीनेस हो जाएगा। यू विल बी हैविंग स्प्रिंग इन योर स्टेप, हर चीज़। अच्छा अब क्या है, यू आर देयर। आप ये भी नहीं कहोगे कि अब आगे क्या आने वाला है, क्योंकि जो है मैंने अपने आप को ऐसे ढाल लिया है कि जो है उसको 100% जीना है, बस 100% जीना है। अगर हम जप कर रहे हैं 100% जप कर रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं 100% खा रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं 100% बोल रहे हैं, अगर हम सुन रहे हैं 100% सुन रहे हैं। जब कुछ भी हम 100% कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान अपने आप अपने अस्तित्व की तरफ चला जाता है। योर रियलिटी कैन बी कॉट ओनली इन द मोमेंट, और द रियलिटी कैन ओनली रिवील in the moment. It will never reveal in the future, or it will never reveal in the past, isn't it? Past cannot be changed. Future has not come yet. It's still far away. So the only choice we have is this moment. Present moment. एकदम ठीक बोले आंटी. Present moment. You live 100%. और जितना हम उसको, और ये आप सीखोगे कैसे 100% जीना? जब से सीखोगे। जितना आप जब करते रहोगे, आप अगर आपको क्लियरली पता चल जाता है कि मेरा मन भटक रहा है कि मेरा मन जप कर रहा है। ये आपने किया होगा। अभी आज सुबह आपके साथ बच्चे भी थे और आप गुरुद्वारे में गए, आपने भगवान पाठ पढ़ा होगा। कितने समय आपका ध्यान पाठ पे रहा और कितने समय उन जो बच्चों के ऊपर रहा, ओनली यू नो, करेक्ट? सो कीप ब्रिंगिंग योर सेल्फ बैक टू, जो भी कर रही हूँ 100% कर रही हूँ। तो देन बिजीनेस वी कैनॉट स्टॉप इन लाइफ, क्योंकि लाइफ है तो किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। एक्टिविटी, बिजीनेस मीन्स एक्टिविटी वी कैनॉट स्टॉप। अब बाहर की एक्टिविटी बंद कर लोगे, मन की एक्टिविटी चलती रहेगी। एक बंदा है हमारे साथ ही पढ़ रहा था, एक दिन स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने बहुत चिंतन किया है, अब मैं गुफा में जाके रहूँगा। तो स्वामी जी ने उसको बॉम्बे के बाहर, जहाँ पे उनका वो लोनावाला में, वहाँ पे एक देवी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसके पास ही कुछ गुफाएं हैं। तो पंडित जी को बोला, हमारा एक लड़का आ रहा है, ज़रा एक गुफा साफ़ करवा दो। तो साफ़ करवा दी। और ये महाशय कहीं से पूरा बैंड बाजा अपने सारे भक्तों को लेके, जो उनके सब, हम आपको छोड़ने आएंगे, हम आपको छोड़ने आएंगे, हैं? किसके लिए? कि इन महात्मा को गुफा में बैठ के साधना करनी है। आ गए, पर ये सब भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, सब छोड़ने जा रहे हैं। ऊपर गए, देखा सब कुछ ठीक है। अब तो 3-4 बजे थे, तब तो दिन था। अब 6 बजे मंदिर बंद हो गया, सब चले गए। वो लॉक करके चला गया, उधर गेट है, गेट भी लॉक करके चला गया। वो गुफा में बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद मच्छरों ने अपना प्रेजेंस दिखा दिया। अब ये तो ना कोई ओडोमॉस स्टिक लेके गया, कुछ नहीं लेके गया, दिया सिर्फ टॉर्च दिया हाथ में। और सामने देखे पहाड़ी के ऊपर है, तो सामने देखे तो पूरा घुप अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ जाना है वो भी नहीं, टॉयलेट भी जाना है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। और मच्छरों ने उसको अपना उनका छोड़ दो उनको नीचे छोड़ दो। हाँ, तो उन्होंने, मच्छरों ने कहा कि अरे ये तो नया स्पेसिमेन आ गया, वेरी स्वीट ब्लड, चूसना शुरू कर दिया। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो थोड़ी देर तो बैठा रहा। फटाफट उसके बाद फ़ोन आया, स्वामी जी को फ़ोन आया, स्वामी जी किसी को भेजिए, मैं यहाँ पे रात नहीं बिता सकता। वापस आया तो स्वामी जी को ने पूछा, स्वामी जी ने पूछा अब क्या करोगे? तो
स्वामी जी ने कहा तुम बताओ, नहीं आप बताइए स्वामी जी मैं क्या करूँ। स्वामी जी ने कहा अपने कमरे में जा, अंदर बैठ, फर्स्ट क्लास एसी लगा और दरवाजे पे लिख दे केव और कमरे में बैठ। देखो तो हमारे को दूर बोलते हैं ना, अच्छा अभी उससे बात मत करो, शांत में बैठने दो उसको शांति में बैठने दो। उसको बोलोगे तो दे विल गेट ट्रिगर्ड, इफ दे गेट ट्रिगर्ड फिर कुछ नहीं होगा, फिर अभी क्लोज कर देते हैं। हाँ, you go play with the kids, see those boys, disturb them, go. है तो what we are, तो shama is controlling your senses, controlling your mind, controlling your mind. Dhamma is controlling your senses. Uparama is third step. When you control your mind and control your senses, your mind, even if your senses are open, it does not leak out of the senses. हमारा क्या है, अभी मेरा ध्यान इसके ऊपर गया ना, इस बच्ची के ऊपर, आवाज़ के ऊपर गया, इनके ऊपर जा रहा है। पर कभी कभी आपने अपने को भी देखा होगा, सुबह आप सब सो के उठते हो तो आंखें खुली हैं, बट नथिंग इज रजिस्टरिंग इन द माइंड, एकदम अंदर शांत है थोड़ी क्षण के लिए, लेकिन you for some time you are absolutely quiet within. So that is the state of uparama. Then fourth thing comes, and that is titiksha. Titiksha means the ability to endure. Life is going to throw different things at you, and this body is going to react. Sometimes the speech is going to react, sometimes the thoughts and emotions are going to react. How do you endure everything that the world is throwing at you? Because everything is not conducive. So how do you endure? Do you endure it complainingly, or do you endure it happily? Endure it happily. Which leads to fourth thing, that all the four above, you do it with Shraddha, means faith. When all these four are done with faith, the result is Samadhan. The samundar अपने अंदर में पूरा समाधिस्थ है. Samadhan means leads to Samadhi. It's absolutely quiet and peaceful and content within itself. The appearance and disappearance of the waves on the surface of the ocean does not disturb the ocean. Right? That should be our disposition in life. That activity or no activity should not disturb us. And that will only happen when we interact with the activity 100%. Not out of guilt, not out of regret, not out of expectation. Because this is come in front of me, I have to deal with it, Busyness of life. See, so these are some छोटे नुस्खे हैं, if you can understand what we are saying. And if you want to be and one more important point that I want to make. Another important point I want to make is, why do we engage in activity in life? Knowingly or unknowingly? Why do we engage? Yes, tell me. I forgot. Think. Batao. Mate. Why do we engage in activity in life? Majority of them are stimulus. Activity because you enjoy it. Yeah. Because you like it. That's where the problem is. Yeah. If you do it because you like it, you will desire it again. That will not lead to contentment. Desire leads to more confusion, more desires, and eventually you lose the plot. So you have to enjoy the activity in the moment with contentment inside. Then it is right. It should not leave an impression
फिर कि आज फलूदा खाया, अगली बार मैं फिर खाऊंगी, फिर अब मेरे को भी ये बनाना है. नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, अब मैं भी ये ट्राई करूंगी, मैं भी ये बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी. Glass noodles. ग्लास नूडल्स, नॉट राइस नूडल्स. तो ये जो बिजीनेस है, तो ये एक्टिविटी हमको व्हाट इज द, मैं क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिविटी. मैंने अभी पिछले 3 दिन में आंसर किया है. अच्छा है आप बोल गए. मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिविटी? बताओ माते. Keep yourself busy and करेक्ट. और आप जब इज एक्टिविटी, जब एक्टिविटी है, क्यों करते हो आप? जब अपने आप को करेक्ट. एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, यस, एंड बॉडी. गुड, वेरी गुड पॉइंट. सो अब आपका आंसर एकदम, देखो मैंने आपको ट्रिगर कर दिया, आपका ध्यान मैंने करेक्ट जगह पे ले गया, तो आपको आंसर अपने आप आ गया. आपने क्या बोला कि टू कीप द माइंड बिजी एंड टू कम टू साइलेंस, या क्या आपने बोला, टू बी हैप्पी और वट एवर, बट साइलेंस इज हैप्पीनेस. तो दैट इज वॉट इट इज. साइलेंस का मतलब क्या हुआ कि आपके मन में से जितने भी उल्टे सीधे थॉट्स थे, विचार थे, सब शांत हो गए. तो एक्टिविटी किस लिए करनी चाहिए जीवन में? वाई डू यू बिकम, वाई, इन वॉट मैनर वी शुड बी बिजी इन आवर लाइफ, that we become quiet inside. शुद्धिकरण होना चाहिए. We should become purified as a result of activity. Normally, how do we engage in activity? One activity leads to more activity. By choice. अभी मैंने ये कर लिया, अरे मेरे को अभी ये करना है, उसके बाद ये करना है, मन में इच्छा आ रही है, तो ये गलत है. ये नहीं, ये इसका नुस्खा है, बट slowly you will discover the way. And the first step कि whatever activity you do, it should lead to silence. Now I'll show you one way how your busyness is leading to silence. Every day you wake up, you get engaged in activity for the whole day, only to go into silence at night, which is sleep, isn't it? Agree? That is your observation of activity in your daily life. If that is what is happening, why can't I live like that? The activity called a thought comes, again it leads to silence between two thoughts. The activity of breath comes, again it leads to a silence between two breaths. उसको संधि बोलते हैं. तो इस टाइप का एटीट्यूड बना लो कि मैं जिस चीज़ में भी एंगेज हो रही हूँ, इट इज़ एन एक्ट विच विल लीड टू प्यूरिफाई. मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मेरे मन का शुद्धिकरण हो रहा है, मेरी बुद्धि का शुद्धिकरण हो रहा है. फिर शब्द का उपयोग, शब्द भी एक्टिविटी है, स्पीच भी एक्टिविटी है. स्पीच ऐसी यूज़ करो जिससे कि अपने स्पीच का शुद्धिकरण हो जाए. तो कैसे होगा? भगवान का नाम लो, भजन करते रहो, सिमरन करते रहो. हम बिजीनेस की बात कर रहे हैं, पर बिजीनेस मस्ट, अनदर वर्ड ऑफ बिजीनेस इज एक्टिविटी. तो इट मस्ट लीड टू साइलेंस. और ज़रूरी नहीं है कि एक एक्टिविटी है पूरे लाइफ की एक्टिविटी. कब साइलेंस होएगी? जब मर जाएंगे तब साइलेंस होगा. अबे हमको उस समय तक क्यों वेट करना है? क्या हम उस टाइप का साइलेंस जीते जी नहीं अनुभव कर सकते? कर सकते हैं. अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसे हमारे जीवन में उदाहरण हैं. वी हैव गॉट एग्जाम्पल्स इन आवर लाइफ. द संत महात्मा, द ग्रेट सेजेस who are living in this world even today and are living a silent life and yet totally dynamically active in world. तो इस प्रकार से अपने आप को ढालना है. पहला, एक्टिविटी मस्ट लीड टू प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन मस्ट लीड टू recognition of the depth of consciousness that I am, and from there when you look, जब समंदर ऊपर देखता है कि यार कहाँ पे हैं ये लहरें, उसको लहरें नहीं दिखती, उसको क्या दिखता है? अपने आप ही दिखता है. पानी अपने आप को देखता है. वो अपने आप को देखता है, हर लहर में अपने आप को देखता
है कि नहीं? उसी तरह से हम भी जब अंदर अपने अस्तित्व तक जाएंगे और वहाँ से हम पूरी दुनिया को देखेंगे तो हमको हर चीज़ में अपने आप को ही हम देखेंगे। स्टोरी ओवर लाइफ की। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। यही तो जीवन है, यही जीवन। यही जीवन है। इससे ज़्यादा कुछ प्राप्त, इसी को रियलाइजेशन बोलते हैं, इसी को साक्षात्कार बोलते हैं, इसी को प्रभु की कृपा बोलते हैं। कम आजा, सफ़ेद दाढ़ी के पास, काली दाढ़ी नहीं। जाती है। काली दाढ़ी नहीं, सफ़ेद दाढ़ी के पास आ। जाओ जाओ मामा। तो दैट इज द मैसेज फॉर बिजीनेस फॉर टुडे। गुड। ठीक है सर? ठीक है इंद्रजीत? बिल्कुल अपनी बिजीनेस से बहुत पक चुके कम कर दो। ऐसे कभी नहीं बोलना है। मैं तुमको बार बार बोलता हूँ, या ऐसे कभी नहीं बोलना है। पक गए तो वो तुम्हारे को परस्यू करेगा, और बोझ लगेगा। बोझ लगेगा। कई बार आजा आजा आजा, ये ले पकड़, ये ले, प्रेजेंट मोमेंट में इधर आ, enjoy करना ये ले, जरूरी है। ये ले। कोशिश करते हैं फिर वो इतने सुबह मेरे दाढ़ी से खेल रही थी। ये ले, ये ले। ओए स्वामी जी वो हंसी आ रही है। स्वामी जी क्या कर आजा आजा। बड़ी सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई हुई है। हैं? हाँ माँ है सब को पूछ रहे हैं तो सुंदर है। हाँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।